रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Fun-full activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rave. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up, register now. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम आपको बेहद खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं। आप रेडियो पर लगातार एक जिंगल सुन रहे हैं जिसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं दिसंबर में होने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो / कॉन्फ्रेंस दिसंबर में दिल्ली में जो होने वाली है उसके बारे में। आज हम डिटेल्ड बात करेंगे कि उस कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या है, उसमें किस तरह के इवेंट होने वाले हैं, आप उस इवेंट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर रविंदर सिंह जी हैं जो साइंटिस्ट हैं। उन्हीं के आइडिया से इस इवेंट को आगे रेखांकित किया गया है और अब उस दौर पे है कि जहां पे अब बहुत कम समय है तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
I feel very honored to be with Danish, and I will be happy to share my ideas with you people. डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले बताएं कि इस इवेंट का, इस कॉन्फ्रेंस का आइडिया आपको कैसे आया, उसके पीछे क्या सोच थी? काफी दिन से हम लोग सोच रहे थे कि कुछ एक ऐसा इवेंट किया जाए जिसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव और हर तरह से उसको ऐसा इवेंट बनाए जिसमें लोगों की एजुकेशन भी हो जाए, अवेयरनेस भी हो जाए, साइंटिफिक नॉलेज हम एक्सचेंज कर पाए, हम मिनिस्ट्रीज को सेंसिटाइज कर पाए, हम कंट्रीज को सेंसिटाइज कर पाए, हम लोगों को सेंसिटाइज कर पाए, एंड एक ऐसा रोड मैप तैयार कर पाए जिससे हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलते हैं, कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले बोलते हैं, कुछ डिसेबल्ड पर्सन बोलते हैं, किसी भी नाम से ले लो, बट उनको हम एक ऐसा सिस्टम दे पाए जहां पे उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो उस तरह के सिस्टम बनाने के लिए हमें मिनिस्ट्रीज को और मिनिस्टर को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को, हमारे पॉलिसी मेकर को एक ऐसा जगह हमें दिखाना चाहते थे कि उनकी नजर आए और उनको ये समझ आए कि इस एरिया में काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, किस तरह के एरियाज है, कहाँ आपको लगता है कि काम करने की ज्यादा जरूरत है? सबसे बड़ा जो एरिया मैं देखता हूँ इसमें, हमारे हेल्थ ने डिसेबिलिटी या रिहेबिलिटेशन को ओन नहीं किया कभी। तो हेल्थ में जब तक ये नहीं आएगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो ये फेस करते हैं वो हेल्थ इश्यूज हैं, प्रिवेंशन ऑफ ऐसी कंडीशन है या प्रमोशन ऑफ हेल्थ है, सो दैट हम उस कंडीशन तक पहुंचने ही ना दें जहां तक वो लोग मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो एक तो वो हो गया, प्रिवेंशन प्रमोशन हो गया, फिर उसका ट्रीटमेंट पार्ट है, फिर उसका रिहेबिलिटेशन है। कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसके बाद बंदे की कुछ बॉडी फंक्शंस में तो रिस्ट्रिक्शंस आ गई, लिमिटेशंस आ गई, इम्पेयरमेंट्स आ गई, तो वो रिहेबिलिटेशन करना जरूरी है। उसके बाद इनसे भी सबसे बड़ा एरिया है अब जो टेक्नोलॉजी के साथ हम जिसको कनेक्ट करते हैं, वो असिस्टिव केयर। तो असिस्टिव केयर विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी, हम बहुत सारी ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई हैं जो लोगों की जिंदगी को, उनकी हेल्थ को, उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी बहुत सारी ऐसी चीजों को बदल सकती है। आज की डेट में अगर बच्चे को पढ़ने के लिए कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी किताब है, बच्चा उसको हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो हम ऐसे ऐप दे सकते हैं, ऐसे उनको बहुत सारी चीजों के थ्रू उनकी हेल्प कर सकते हैं। उन सब चीजों को एक जगह दिखाना बहुत जरूरी है। तो वही इस पूरी कॉन्फ्रेंस का यही एक बेसिक आइडिया रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस से हमें हासिल क्या होगा, मोटिव क्या है इसके पीछे? इसके हासिल है हमें बहुत सारे लोगों को अवेयर करने का, और हमने वो ऑलरेडी देख लिया है। अब लोग इस बारे में जानने लग गए हैं कि हाँ, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी का कोई एरिया है, रिहेबिलिटेशन का कोई एरिया है, और हेल्थ के अंडर होना चाहिए। और इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स के तक ये आवाज जानी चाहिए कि हमें कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। मैन्युफैक्चरर्स के पास आवाज जानी चाहिए कि हाँ, इसकी जरूरत है, हमें और बढ़िया तरीके से असिस्टिव टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, स्टैंडर्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, प्रोडक्ट्स लाने चाहिए, ऐसी सिस्टम्स बनाने चाहिए ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिले। तो हमें एक ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोवेशंस टू प्रोटोटाइपिंग टू मैन्युफैक्चरिंग टू डिलीवरी टू प्रोविजन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग द मैन पावर, और जिस पूरे का पूरा एक रोड मैप है जो हम इससे तैयार कर पाएंगे इस कॉन्फ्रेंस से। इस कॉन्फ्रेंस से जो भी निकलेगा, क्या आपको रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास सबमिट करने वाले, आप अपने रिकमेंडेशन भेजने वाले हैं? एब्सोल्युटली। इसमें एक व्हाइट पेपर हम तैयार करेंगे, इसमें एक ऐसा हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जो जिनके हाथ में वो ऐसी पावर्स होंगी ताकि वो इसके बारे में कुछ सॉलिड स्टेप ले पाए। उसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। ऑलरेडी हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात करी, हमने नीति आयोग से बात करी, दे आर ऑल रेडी टू कम विद अस। हमने हमारे जो अभी करंट डायरेक्टर जनरल हैं उनसे भी बात करी, वो इस बात से बहुत सहमत हैं, खुश हैं कि ये इस तरह का कोई काम किया जा रहा है।
तो वो सब लोग एक्चुअली पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं, वो बड़े इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में से क्या आउटपुट निकाल के ला रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं कि ये कब से कब होने वाली है और इसमें आकर्षण का केंद्र क्या है, किस किस तरह के इवेंट होने वाले हैं। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले दिन एक प्री कॉन्फ्रेंस से पहले हम वर्कशॉप्स करते हैं, 20 हमने प्लान करी है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस एरिया में कुछ काम कर रहे हैं, जिनकी नॉलेज एनहांस करने की जरूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है, उसमें मशीन लर्निंग का रोल क्या है, डाटा कहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा, गैप्स कहाँ पे है, प्रोविजनिंग कौन करेगा, इंश्योरेंस हो सकती है नहीं हो सकती है, वो इस तरह की 20 वर्कशॉप्स हैं हमारी, जो डेडिकेटेडली उस एरिया से लोगों को बुला के हम उनको पढ़ाएंगे। उनको हम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं दुनिया भर से। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस है, इस तरह के और WHO है हमारे साथ, यूएन है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस एरिया में बहुत काम किया है और वो इस वर्कशॉप्स में हमारे पास हमारे साथ रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्स पर्सन का काम कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है इसका साइंटिफिक प्रोग्राम, जहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी काम किया है वो उनको हम एज ए इनवाइटेड स्पीकर बुला रहे हैं। कुछ लोग अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे और उसके अलावा वो पोस्टर भी वहां पे लगाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ PG कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, तो मेडिकल प्रोफेशनल, रिहैब प्रोफेशनल या टेक्नीशियंस जो भी इस एरिया में काम कर रहे हैं वो आके अपना साइंटिफिक अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं। तीसरा पार्ट होगा पैनल डिस्कशन, जहाँ पे हम एमिनेंट लोगों को बिठा के उनसे पूछेंगे कि हमें इस डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमें मार्गदर्शन देंगे, कैसे हमें वो बताएंगे कि क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। और चौथा जो सबसे बड़ा जो हमारा इसमें जो एक पार्ट रहेगा वो है एग्जीबिशन। उसको हमने बहुत अलग अलग तरीके से उसको तैयार किया है। उस एग्जीबिशन में एक एक्सपीरियंस जोन होगा, उसमें कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, कुछ ब्लाइंड पर्सन, कुछ व्हील चेयर वाले लोग जो यूज कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे, कुछ अपने परफॉर्मिंग आर्ट दिखाएंगे, म्यूजिक वाले लोग हैं। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं वहाँ पे। और ये बहुत बड़ा एरिया हमने हायर किया है आउटसाइड दिल्ली, जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें, उसको एरो सिटी बोलते हैं। उसमें GMR ग्राउंड्स हैं, 12 एकड़ का एरिया है, उसमें बड़े हैंगर बनाएंगे और इस तरह की सारी एक्टिविटीज वहीं पे विद दुनिया का जो भी मोस्ट एक्सेसिबल फैसिलिटीज हैं वो हम क्रिएट करेंगे। ये इवेंट डॉक्टर साहब कब से कब हो रहा है? ये 6 दिसंबर को वर्कशॉप्स होंगी, प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप, और 7, 8, 9 दिसंबर को इसी साल में हम करने जा रहे हैं। वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट भी जा सकते हैं? वर्कशॉप में जो सीरियसली जो अंडरस्टैंड करना सीखना चाहते हैं दे कैन पार्टिसिपेट, बट उनको हमारे से बात करनी पड़ेगी। उसके लिए हम बिल्कुल पब्लिक डोमेन के थ्रू उनको इनवाइट नहीं कर रहे हैं। इट्स अ क्लोज सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, जहाँ पे उनको हमें रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, हम उनकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद उनको अलाउ करेंगे। थोड़ा सा लिसनर्स के मन में एक डाउट है कि पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या ये इवेंट फ्री है, और जो डेलीगेट मेंबरशिप और पार्टिसिपेशन है क्या वो सेम है या डिफरेंट है? जो एग्जीबिशन एरिया तक आके देखना चाहते हैं उनको हम फ्री एक्सेस देंगे। उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, बट इट इज फ्री। जो हमारी वर्कशॉप्स हैं वो पेड हैं और उसका डेफिनेटली सबको पेमेंट करके आना पड़ेगा। कुछ वर्कशॉप्स के लिए हम स्पॉन्सरशिप की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अगर किसी कंपनी का, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो कहते हैं कि हम उसमें लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनका ट्रैवल का, उनका स्टे का हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो करेंगे। बाकी साइंटिफिक प्रोग्राम जितने भी जो जैसे कॉन्फ्रेंसेस में होता है, तो पेपर प्रेजेंट करने के लिए लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह पे करते हैं, वो पे करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्काउंटेड रेट पे उनको बिल्कुल एंट्री देंगे।
लेकिन जो कोई पैनल डिस्कशन सुनना चाहता है या पेपर प्रेजेंटेशन सुनना चाहता है, सिर्फ सुनना चाहता है, क्या उसको कुछ पे करना है? वो क्योंकि पार्टिसिपेंट्स वाले एरिया में होगा तो वो पेड वाले ही वहां जाके सुन पाएंगे। तो अगर किसी को इसके लिए करना है तो सेपरेटली दे कैन राइट ईमेल जो हमारी वेबसाइट पे है, तो हम उनका रिक्वेस्ट कंसीडर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो कुल मिला के ये एक पेड प्रोग्राम है, सिर्फ एग्जीबिशन फ्री है। अगर किसी तरह की आपको पैनल डिस्कशन सुननी है या पेपर प्रेजेंटेशन सुननी है या आपको वर्कशॉप देखनी है या उस पे पार्टिसिपेट करना है, तो ये सारा पेड है, सिर्फ एग्जीबिशन फ्री है। हाँ पेड है, बट उसमें बहुत ज्यादा मतलब कम डिस्काउंटेड रेट पे है। इट्स वेरी मिनिमल चार्जेस हैं जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बहुत ज्यादा होते हैं, बट बिकॉज हम इंडिया को एज ए रोल मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका बहुत नॉमिनल चार्जेस है। कैन यू टेल आवर लिसनर प्राइस हमारी वेबसाइट पे बात करनी पड़ेगी, उसका हम मतलब टेलर मेड कर सकते हैं। वो मेरे को अभी इतना ध्यान नहीं है क्योंकि उसके लिए हमने मीटिंग करनी है और उसको कुछ हमने शेयर भी किए हैं, उस पे अवेलेबल है हमारी वेबसाइट। आपने इस इवेंट को पेड क्यों रखा है? पेड के कारण आपको नहीं लगता बहुत जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से निकल जाएगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं फिजिकली आ सकते, तो क्या? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ दानिश जी। मेरे को आपने बहुत अच्छे से ये बात करी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस तरह का एक सिस्टम दिखाना था पहले। इस बार के लिए हमें हम मतलब उसमें वो पूरा हमारा इतना खर्चा आ रहा है क्योंकि हमें वो जमीन जो है जहाँ पे वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है उसमें भी हमें स्पेंड करके लेना पड़ेगा। उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसके ऊपर एरियाज बनेंगे, तो वो सारा हर चीज पे एक खर्च आएगा। तो मैं इस बार तो कोई कमिट नहीं कर सकता कि हम इस तरह का मतलब वो उनको सबको बुलाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि वो सारे हमें खर्चे निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने उसको पेड रखा है और हमें भी बड़ा महसूस, मेरे को बल्कि बहुत ज्यादा महसूस होता है कि ये हम उन लोगों के लिए मे भी उनको नहीं बुला पाएंगे जिनके लिए हम कर रहे हैं, बट एटलीस्ट जो आ पा रहे हैं उनको तो हम मोटिवेट कर दें, उनको तो हम बोलें कि आप इस एरिया में काम करेंगे, इस एरिया में आप अपने आप को डेडिकेट करेंगे। हम उनसे कमिटमेंट लें कि आप जिंदगी भर इस पे कितना कंट्रीब्यूट करोगे अपनी, जब तक आप इस दुनिया में हो। तो अगले बार हम जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम्स करेंगे डेफिनेटली हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे, और मेरे को लगता भी है कि काफी सारे लोग इसमें फिलैंथ्रोपिक काम करेंगे और CSR कंपोनेंट से लोग आएंगे। और जैसे हमने अभी भी एक कंपनी को ऐसे बोला था कि आप 30 बच्चों को मेरे को त्रिवेंद्रम से आप पिक करें डिफरेंट आर्ट सेंटर में और यहाँ लेके आए, तो अभी भी चल रहा है वो बात। हमें जैसे जैसे वो हमें रिस्पॉन्स आता रहेगा हम उसको आपके इस चीज को बहुत ध्यान में रखेंगे और जितना भी कोशिश होगा हम उनको इस कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन तक लेके आएंगे, वो देख सकते हैं। तो कितनी पार्टिसिपेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इवेंट? हम 10,000 लोगों का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें हम 50 कंट्रीज का, हमारे 150 से या 200 तक हमारे एक्सपर्ट्स होंगे जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं। उनका आने का जाने का सारा खर्चा हम अपने सर पे ले रहे हैं, वो हम करेंगे, चाहे वो नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है। तो काफी बड़ी गैदरिंग में हम लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम बहुत सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आए और हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, और बाकी कोई भी आना चाहे सबके लिए वी कैन मेक अरेंजमेंट। ये इवेंट ऑनलाइन भी शेयर किया जाएगा? अभी तक नहीं, अभी तक हमने ऑनलाइन नहीं करना है क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि फिर हमारा जो पर्पस है उसका लोगों को वहां बिठा के उनको अच्छे से ट्रेन करने का, टीच करने का, वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो ऑनलाइन वाला अभी हमने नहीं सोचा है, मे बी लेटर ऑन वी कैन थिंक, क्योंकि अभी तक वो हमारा सिर्फ ऑफलाइन वाले मोड में ही हम प्लान कर रहे हैं। तो जो असिस्टिव एग्जीबिशन है, जो असिस्टिव डिवाइसेस को लेके, तो उसमें जो प्रोडक्ट शोकेस किए जाएंगे तो वो पूरे इंटरनेशनल किए जाएंगे या सिर्फ इंडिया की कंपनी ही उसमें? नहीं, हम पूरे वर्ल्ड से कंपनीज को बुला रहे हैं और कंपनीज आ रही हैं हमारे पास ऑलरेडी। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने ऑलरेडी हमारे से स्टॉल वो कर लिए हैं, दे आर कमिंग, और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं। मतलब
इंडिया की बड़ी कंपनी भी है, इंडिया के ऐसे स्टार्टअप भी है जो एक एक बच्चे ने अपना स्टार्टअप तैयार किया, हम उनको जगह दे रहे हैं कि आप अपना आके प्रोडक्ट वहां दिखाएं। कुछ 2-4 असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में अगर बता सकें आप लिसनर्स को, किस तरह का आकर्षण वहां इंडियन, अगर इंडियन मैन्युफैक्चर की बात करें तो उसमें हम नियो मोशन की बात कर सकते हैं। नियो मोशन की एक ऐसी व्हील चेयर है जिसके आगे अगर हैंडल लगा के तो वो एज ए स्कूटर बन जाता है। बहुत यूजफुल है, जो व्हील चेयर लोग यूज करते हैं उनके लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। उनको किसी दूसरे और स्पोर्ट की जरूरत नहीं, आदमी की जरूरत नहीं है कि वो उनको पुश करके लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया इन्वेंशन है इंडियन नियो मोशन का, नियो फ्लाई और ऐसे 1-2 प्रोडक्ट हैं। एक बायोनिक हैंड है, रोबोटिक हैंड है, जो कि जिनके हाथ नहीं होते तो वो पूरा बंदे के ब्रेन के साथ मूव करता है, हम क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड डिवाइस। ऐसे ही टाइनोर कंपनी है जो कि इंडिया के ही वर्ल्ड के बहुत स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, आर्टिफिशियल फुट वगैरह बनाते हैं। जयपुर फुट वाले हैं, वो अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे। इस तरह से हमारे कुछ सॉफ्टवेयर वाले बच्चे हैं जिन्होंने एक्सलेंट काम किया है। एक उसमें प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, साइनर.ai करके अंकित जी ने बनाया है। बहुत बढ़िया वो सॉफ्टवेयर है जिसमें दोज हु आर यूजिंग, जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो वो साइन लैंग्वेज को आप उसको टेक्स्ट में या ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे वहां पे जो देखने को मिलेंगे, जो अदरवाइज हमें पता नहीं लगता है। तो हमने वो एक प्लेटफॉर्म पे उनको सबको लाने की कोशिश करी है। तो पॉलिटिशियंस भी इसका हिस्सा रहने वाले हैं? हम हर पॉलिटिशियन के पास गए हैं। हमारे को एटलीस्ट 10 या 15 यूनियन मिनिस्टर के आने की उम्मीद है। उसमें हर पार्टी से हमने बोला है। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी पीएम को भी हमने कोशिश कर रहे हैं उनको कि वो आए और हमारा ये एग्जीबिशन देखें, हमारी कॉन्फ्रेंस देखें और आशीर्वाद दें, हमें वो गाइड करें, लीड करें। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर को भी हमने किया है, सोशल जस्टिस वाले मिनिस्टर भी हमारे को बहुत उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और इसके अलावा फ्रांस कंट्री हमारे साथ हैं और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से भी मेरे को रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको आने के लिए और आना चाहते हैं वो। मैं इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस का मेंबर हूँ। मैं एक डिसेबिलिटी एडवोकेट्स करके ग्रुप का भी मेंबर हूँ, जो इंटरनेशनल लोग जो काम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें इनवाइट करें, हम आना चाहते हैं। फ्रांस कंट्री पार्टनर बनाने के पीछे कुछ खास वजह? फ्रांस में से हमें एक रिक्वेस्ट आया था, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं माइक जी, तो उन्होंने एक इंडो यूरोपियन डिजिटल फेडरेशन बनाई है, तो वो सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ करते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस को आप कंट्री पार्टनर ले लें और उसके साथ में सारी यूरोपियन कंट्रीज को इसमें पार्टिसिपेट के लिए मोटिवेट करूंगा। तो वो हमारा काफी हद तक हो गया है, अब एग्रीमेंट भी हो गया है। तो वो क्योंकि एक्चुअली क्या था कि वो फ्रांस वाले चाहते हैं इंडिया के साथ काफी संबंध बढ़ाएं, मतलब वो चाहे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या प्रोडक्ट्स की बात हो, वो एक्सचेंज हो, तो वो बहुत कीन है इंडिया के साथ काम करने के लिए। ऐसे और कंट्रीज भी आ रहे हैं, जैसे उनको पता लग रहा है कि फ्रांस कर रहा है तो वो भी अब आगे आ रहे हैं कि हमने भी आना है, हम इंडियन प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, हमें वो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट कम रेट पे मिल रहे हैं, बाकी कंट्रीज में उस तरह से नहीं अवेलेबल है उनके प्रोडक्ट। तो इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी वो उसको मतलब रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे एटलीस्ट 3 या 4 मेडिकल पार्क हैं जिसमें उन्होंने फैसिलिटी असिस्टेड प्रोडक्ट के लिए फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए एग्री कर दी। आंध्र प्रदेश में टेक जोन है, नालागढ़ में नई पार्क जो बन रही उसमें है, ग्रेटर नोएडा वाली पार्क में तैयार हैं वो करने के लिए। उन्होंने ऑलरेडी हमारे पास स्टॉल भी लिया है और उन्होंने डेडिकेट भी कर दिया है कि हम अपने पार्क में जो 350 एकड़ की जगह है उसमें से असिस्टेड टेक्नोलॉजी के लिए अलग से डेडिकेटेड स्पेस जरूर बनाएंगे। ऐसे महाराष्ट्र में भी हमें रिक्वेस्ट आया दिया। डॉक्टर साहब, ये फर्स्ट टाइम आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ग्लोबल असिस्टिव की जी, बहुत बड़े लेवल पे आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने होंगे, बहुत सारी मैन पावर आपको चाहिए होंगे। तो
कुछ चैलेंजेस के बारे में बताएं कि आपको किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम के बारे में जरूर बताएं हमारे लिसनर्स को। इसमें चैलेंजेस तो खैर बहुत ज्यादा हैं, बट मैंने अर्लियर हमने काफी सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे लिए फर्स्ट नहीं है, बट इस लेवल की ये कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैंने WHO के साथ काम किया है और हमने इसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आइकोनेक्स करके हैं और एक हमारी NGO है शेस्प्रो, उन्होंने हमें काफी इसमें सपोर्ट किया है। आइकोनेक्स की बहुत बड़ी टीम इसके पीछे लगी हुई है। हर चीज को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर चीज को वो डॉक्यूमेंट करते हैं, मेरे को रिपोर्ट बैक करते हैं। उनमें से हमारे जैसे डॉक्टर दीप्ति खन्ना है, शी इज प्रोजेक्ट हेड। मिस्टर गौरव जी हैं हमारे साथ, गौरव सोलंकी, वो हैं। और इनके जो ओनर, जो डायरेक्टर्स हैं जो आइकोनेक्स के, डॉक्टर मिस्टर अभिमन्यु सिंह एंड राजीव बंसल जी, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें इस चीज में हेल्प करी है। और मेरे को मतलब कभी फील नहीं होता कि मेरे को इतना बड़ा चैलेंज है जो मेरे को करना है। तो मंत्री से मिलना है या किसी से कुछ बात करनी, चिट्ठी भेजनी, कम्युनिकेशन करना है, ईमेल जाना है, फोन करना है, ऑल थिंग्स, वो वेन्यू बुक करेंगे, वो सारी चीजें कहाँ पे रुकवाएंगे लोगों को, बहुत बड़े एजेंडे के साथ वो काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत एक्चुअली बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस चीज को इतने सीरियसली लिया और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इंडियन ऑडियंस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड दोनों से? मैं एक्चुअली आपको बताऊं दानिश जी, मैं कभी डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड में मैं फर्क नहीं करता हूं। आज मैं एक कॉन्फ्रेंस में था अभी बेंगलोर में, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि अगर आप जब ऑडियंस में बैठे हो, अगर आप यहाँ पे चेयर नहीं होंगी तो आप क्या करोगे? क्या आप एक पूरे दिन का प्रोग्राम सुन सकते हो? तो उनका हाँ ना में सिर था। तो मैंने कहा कि आप इसको चीज को ये मानना छोड़ दो कि हम एबल्ड बॉडी हैं, हम डिसेबल को कैसे बात करें या वो क्यों ऐसे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमें सबको असिस्टेड टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमें सीढ़ी चढ़ने, हमें छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। आम बंदा कहे मैं छलांग मार के छत पे चढ़ जाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता। तो इसलिए सब लोगों को मिलके हमें सिर्फ ये है कि हाँ, जो थोड़ा सा मतलब जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो और रिसोर्सेज इसलिए ले पाते हैं कि उनके पास वो लिंक्स बन जाते हैं। वो एबल्ड बॉडीज जितने भी अभी तक हुए हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट जो बंदा जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चाहे उसका विजुअल प्रॉब्लम है, चाहे हियरिंग प्रॉब्लम है, वो रिसोर्सेज तक नहीं पहुंचते, तो वो और मार्जिनलाइज हो जाते हैं। तो हमें सबको मिलके ही सबके साथ काम करना है, सबको साथ में लेके चलना है। और मैं अभी कल वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड वालों से भी यही बात कर रहा था कि जितने भी इस तरह के डिफरेंट जो लोग हैं वो 200% ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं जब उनको हम अच्छे से उनको एनवायरनमेंट दे पाए। एक ब्लाइंड बंदा जो रिसेप्शन पे बैठ के, या और एक बाइंडिंग वाली उन्होंने एग्जांपल दी कि ओमेगा एलिवेटर्स का जो मशीन बनती है उसकी वायर वाइंडिंग जो करने वाला एक ब्लाइंड बंदा है, और आज तक एक भी फॉल्ट नहीं आया। मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ बच्चों की, डाउन सिंड्रोम वालों बच्चों की जो काम कर रहे हैं होटल्स में और एक्सलेंट वर्क करते हैं, जिसके लिए हम उनका मतलब बहुत मतलब वो अच्छे से उनको हमें भी उनके बारे में अच्छी फीलिंग आती है कि यस दे आर डूइंग गुड वर्क। तो इस तरह का डिस्टिंक्शन करना मैं उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। हम सबको मिलके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है, सोसाइटी बनानी है, कम्युनिटी बनानी है, जहाँ से सब लोग मिलके हम अपने देश के लिए और दुनिया के लिए कुछ अच्छाई काम कर जाएं और अच्छा उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएं। सर, हमारी एनजीओ से आपको किस तरह का रिस्पांस आ रहा है और इन जनरल आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है इस कॉन्फ्रेंस पर? मेरे को आप बिलीव नहीं कर सकते, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। इतने लोगों ने प्यार दिया है, इतने लोगों ने हमें इच्छाएं, शुभ इच्छाएं दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं। और आपकी एनजीओ से भी हमें बहुत बढ़िया वो मिला है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कई बार कोई कहीं दुनिया के किसी कॉर्नर में से लोग कहते हैं कि हमने आना है, हमने कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना। तो वो सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, जो वहां से हम लोगों को इस तरह की मतलब सपोर्ट मिल रही है, इस तरह की हमें रिस्पांस मिल रहा है। सर, हमारे लिसनर्स को
बता दीजिए अपनी वेबसाइट का एड्रेस जहां ये पूरी जानकारी मिलेगी, ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ, अगर पॉसिबल हो तो। फोन नंबर तो मेरे को अभी नहीं याद, बट वेबसाइट पे आप फोन नंबर और ईमेल सब हैं। वो ईमेल आईडी सॉरी वेबसाइट का एड्रेस है globalassistivtech.com, www.globalassistivtech.com, GLOBALASSISTIVE tech.com, globalassistivtech.com। जी, www.globalassistivtech.com। और Yes. मैं लिसनर्स यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी डिटेल दे दूंगा, तो आप वहां से भी रीच आउट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सर, कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसी जानकारी जो मैंने आपसे नहीं पूछा और आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि मतलब कोई ऐसा डिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को मिलके काम करना है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे को उसमें इस चीज को हेल्थ में लाने के लिए काफी वो मेहनत करनी पड़ रही है, बट क्योंकि प्रोविजन को हम 5 तरीके से देख पा रहे हैं कि हमें पब्लिक हेल्थ सिस्टम के थ्रू असिस्टिव टेक्नोलॉजी मिले, इंश्योरेंस से मिले, हमें वो बैंक से लोन मिल जाए उससे मिले। ठीक है, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आउट ऑफ पॉकेट भी ले सकते हैं कि मतलब मेरे को बढ़िया चीज चाहिए। तो मैंने आज जैसे लोगों से पूछा था कि मैं क्या आप ये बताओ चश्मे में कितना डिजाइन आता है, तो हाँ आप क्यों, मतलब क्योंकि वो तो मेरे को एक सिर्फ देखने के लिए हेल्प कर रहा है ना, बट आप उसमें भी फ्रेम का कलर चाहते हो, उसमें गोल्डन कलर हो, उसमें ये हो। तो दीज आर द थिंग्स की जो एक बेसिक थिंग जो गवर्नमेंट दे सकती है। बाकी अगर आपको हायर लेवल की चीजें कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसके लिए आप अपना पैसा स्पेंड कर सकते हैं आउट ऑफ पॉकेट। एंड बाकी जो अभी सोशल वेलफेयर के थ्रू हमें मिल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो हम डिफरेंट प्रोविजंस पे काम करना चाहते हैं और सब लोगों को वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर ऑल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, एनीथिंग, ज्योग्राफी, कहीं पे भी उसके डोर स्टेप तक पहुंचे। हम यही ऐसी उम्मीद करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए, इस इवेंट के बारे में बताने के लिए। आपसे बातचीत का दौर चलता रहेगा। अभी मेरे को आपके साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी, एक शो हम ICMR को लेके भी करेंगे, वहाँ क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा मौजू था वो ग्लोबल असिस्टिव एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसके बारे में था। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू दानिश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की डॉक्टर रविंदर सिंह से, जो साइंटिस्ट हैं और हमें बता रहे थे गैटेक के बारे में, जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है 6 से 9 तारीख तक दिल्ली एरोसिटी में। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए www.globalassistivtech.com पर आप लॉग इन कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivtech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913.
Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Funful activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rain. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up, register now.